चलिए बेटा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the, बेटा ये क्या है? which deals with the study of fluid in motion, which deals with the study of properties of fluid in motion, properties of fluid in motion, fluid in motion। जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है, जब फ्लूइड मूव करने लगता है, then what are the several properties that is shown by the any fluid? Fluid means that can flow, water, oil, air. But you know the first property that we will discuss is viscosity. Viscosity. What is the first property? Viscosity discuss करेंगे। विस्कोसिटी क्या है बेटा? आप देखेंगे अगर पानी को हम ऐसे गिराएंगे और मोबिल ऑयल को गिराएंगे, पानी बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, बट मोबिल ऑयल थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है। मोबिल ऑयल से भी स्लो गिरेगा हनी बेटा, हनी गिरेगा, काफी स्लोली गिरेगा, बिकॉज द honey is even more viscous. Honey have more viscosity. जो फ्लूइड ज्यादा चिपचिपा रहेगा उसमें जो फ्लो होगा वो स्लो होगा, एंड जो फ्लूइड चिपचिपा कम होगा, फ्लो क्या होगा उसमें फास्ट होगा। We will see that water is less viscous than mobile oil, and mobile oil is even less viscous than honey से भी less viscous होगा। Now, अब देखते हैं, तो what is viscosity? Viscosity is that property of fluid, that property of fluid due to which one layer of fluid opposes the another layer of fluid. So what we are discussing, beta, we are discussing about the, beta, see if you see the flow of a fluid in river when the velocity is very less. For example, this is the bottom surface of the river, that is land. Above this fluid is flowing, above this the fluid that is flowing is even more velocity. Next layer even having more velocity, this layer is even more velocity. So as you are moving from bottom of the river to the top of the river, what we are observing, the velocity of the river water is goes on increasing.
सिमिलरली इफ यू सी, बेटा आप किसी ट्यूब के अंदर देखेंगे, ट्यूब के अंदर तो बीच वाले लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, और आप जैसे जैसे बाहर की ओर आइए फ्लूइड की वेलोसिटी goes on decreasing. So we can say that the layer of the fluid which are in the center have the maximum velocity, and similarly in the river water the layer which is on the topmost layer have the maximum velocity. Beta, so when you see the lower layer, the lower layer is flowing with slightly lesser velocity. So upper layer which is moving above the lower layer it just undergo friction. बेटा ये क्या हो रहा है, ऊपर लेयर फ्लो कर रहा है ज्यादा वेलोसिटी से तो इसके ऊपर रगड़ खा रहा है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो रहा है। तो लोअर लेयर क्या कर रहा है, ऊपर वाला लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डाल रहा है, इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। इसके ऊपर वाला लेयर अब इसके नीचे वाला लेयर से रगड़ खा रहा है, तो नीचे वाला लेयर ऊपर वाला को पीछे फोर्स डाल रहा है, विस्कस फोर्स कहते हैं। अब इसके ऊपर वाला लेयर ये मूव कर रहा है इसके ऊपर, ये नीचे वाला लेयर ऊपर वाला पर फोर्स डाल रहा है, विस्कस फोर्स। इसमें दैट each layer, this layer is opposing this layer, this layer is opposing the motion of this layer, this layer is opposing the motion of this layer. Similarly, each layer which have different velocity, the layer which have lesser velocity opposing the motion of upper layer which have more velocity, and this opposition is called viscous force. बेटा दो लेयर के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो नीचे वाले लेयर ऊपर वाले लेयर को रोकती है फ्लो करने के लिए, इसी रोकने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच वन लेयर ऑफ द फ्लूइड अपोजेस द मोशन ऑफ अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स, the magnitude of viscous force, the magnitude of viscous force is directly proportional to what, is directly proportional to the surface area of the two layers, सरफेस एरिया ऑफ टू लेयर, सरफेस एरिया। बेटा ये टू लेयर्स जो है ना, जितने ज्यादा एरिया होंगे उतने ज्यादा जगह से रगड़ खाएंगे, और ज्यादा एरिया बढ़ गया और एरिया घट गया तो फ्लूइड एयर क्या, तो इनके बीच का कांटेक्ट घट जाएगा और एक लेयर दूसरे लेयर को कम अपोज करेगा। तो जितने ज्यादा चौड़ा पानी का लेयर होगा उतना ज्यादा फैला रहेगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया बनेगा, और जब फ्लो करेगा तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा कांटेक्ट में होगा विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो विस्कस मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ फ्लूइड A and velocity gradient of the fluid, velocity gradient of the fluid। बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? बेटा पहला तो जितना भी ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में हो उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा फर्स्ट, और सेकेंड है वेलोसिटी ग्रेडियंट। दो लेयर, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2, कौन बड़ा है, v1 बड़ा है, और दोनों के बीच की दूरी d, that is velocity gradient, that is difference in velocity between the two layers and the separation between the two layers। बेटा ये दूरी जितना ज्यादा होगी विस्कस फोर्स कम लगेगा। अब सबसे ज्यादा विस्कस फोर्स किन लेयर के बीच में मिलेगा, इनके और इनके बीच की दूरी सबसे कम है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में इनके बीच की दूरी सबसे कम है, और ये लेयर निचला वाला लेयर ऊपर वाले से डायरेक्ट रगड़ खा रहा है, तो नीचे वाला लेयर ऊपर वाले को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। तो ये दूरी बढ़ रही है तो इनके और इनके बीच का डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ा घट गया, तो विस्कस फोर्स बिटवीन दिस टू लेयर विल बी लेस।
सबसे ज्यादा विस्कस फोर्स किस लेयर के बीच में बनेगा? दो लेयर जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, so they will produce maximum opposition for the flow of fluid. So flow of fluid is directly proportional to velocity difference. बेटा जितना ज्यादा दोनों के बीच में वेलोसिटी होगा और दूरी मिनिमम होगी, तो दूरी मिनिमम होगी तो कांटेक्ट सबसे ज्यादा होगा. तो difference in velocity and separation between the two layers. This layer of velocity v2 and this layer of velocity v1. This is the velocity difference and d is the separation between the two layers. This whole term is known as velocity gradient. Second term. So what we will say, combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. Combining equation 1 and 2. The magnitude of viscous force is directly proportional to area and velocity gradient by distance. And what is the constant? If you put proportionality constant, this constant is eta. Eta is known as the, what is the symbol? E double T A, read as eta. E double T A. And it is known as the coefficient of viscosity. It is known as the coefficient of viscosity. How we can define? A V1 minus V2 by D. Now, what is coefficient of viscosity? Put it here like this. What is F? Viscous force. Viscous force. Viscous force. Viscous force acting on 1 meter square area of the fluid. बेटा दो लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है ना, उनके कितने एरिया पर लगने वाला फोर्स? 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है. कितना एरिया? 1 मीटर स्क्वायर एरिया. एरिया को नीचे लाइए. वेलोसिटी डिफरेंस क्या है बेटा? और ये नीचे चलाएगा. So what is viscous force? What is coefficient of viscosity? This is the magnitude of viscous force acting on 1 meter square area of the fluid surface in contact, and their velocity difference is 1 meter per second and the separation is 1 meter. बेटा दो लेयर के बीच वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर. तब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको बोलते हैं coefficient of viscosity. This is what coefficient of viscosity. So what is coefficient of viscosity? Is the magnitude of viscous force acting between the two layers on how much area? On viscous force acting on how much area? 1 meter square surface area in contact. And what is the difference in velocity between the two layers? 1 meter per second. And what is the distance between the two layers? Should be 1 meter. So, what is coefficient of viscosity? This is the magnitude of viscous force acting on 1 meter square area of the surface of the two layers in contact. And the two layers have a velocity difference of 1 meter per second. And these two layers are separated by a distance of 1 meter. That amount of viscous force that is acting between these two layers is called coefficient of viscosity. Is known as the coefficient of viscosity. बेटा आपको दिया गया है कि एक वाटर है बेटा, और वाटर इस कंटेनर में भरा गया है और इसके ऊपर हम एक थाली को रख दे रहे, एक प्लेट को रख दे रहे हैं. बेटा इस प्लेट को जब आप रखेंगे और प्लेट, तो ये नीचे वाला एरिया सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर पानी के सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा. पानी के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा. अब आप इस प्लेट को पानी के ऊपर मूव करेंगे, पानी के ऊपर मूव कर रहे हैं, मूव करना चाहते हैं, तो क्या होगा? इसके और लेयर के बीच में विस्कस फोर्स लगेगा. कितना विस्कस? इसको मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना फोर्स इसे अपोज कर रहा है, जो फोर्स अपोज कर रहा है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स. And in liquid, this is known as the viscous force. So amount of force required to move is what? This much. Coefficient of viscosity of the fluid, area of the plate, and with what velocity? If you want to move this plate with 2 meters per second, then this is 2 meters per second. And it will be given that the area, the separation between the plate and the upper layer is very, very small. It is 1 mm or 2 mm like this. Then if this separation is 1 mm, that 1 mm is 1 into 10 power minus 3 meters. Now,
coefficient of viscosity value will be given, area will be given, that is pi r square, the plate area. Then you can determine the force required to move by the help of which principle? Principle of viscosity. What is the formula for force required to move? Eta. A, velocity with which you want to move. And D is the separation between the two layers. That is the plate area and the upper surface. Our next topic is viscous dragging force. Dragging force. Let us say this is a container and this container is filled with fluid. This is a long container. This is filled with fluid. Now you see here, if the fluid is filled, then it will contains of various layers of the fluid. Here what will happen when you are allowing any body to fall through the fluid? Then due to the gravity, when it will move, the velocity of this ball will increase. We are dropping a spherical ball. Let this ball made up of the glass or made up of the steel or brass. Yeah, and this is allowed to fall through the glycerine. Or let it be water. So if fluid at rest is consist of during rest, it will present in layer by layer pattern. What will happen? But as here, when this ball will move through the fluid, this layer will break. But before breaking, it will press like this, and then layer will rupture. Similarly, when it will move more and more deeper, this layer will be take the form like this. So all this layer will rupture when this will move through the fluid. And before rupturing, they will exert force on this spherical bob in upward direction. Why? Because as this ball will move more and more deeper into the fluid, the various layers attains relative motion. So various layers will break. Why? Because this spherical ball is moving down and its great density is more than that of this fluid. That's why this layer will start to sink. And it will fall under gravity. So velocity of this block, this spherical bob is increasing. So as the velocity is increasing because this ball block is falling under gravity, बेटा ये ब्लॉक क्या हो रहा है? Under gravity fall कर रहा है. अब इसकी क्या हो जाने वाली है? Velocity बढ़ती जानी है. Velocity increasing. Why? Because of gravity की वजह से इसकी velocity बढ़ते जानी है. और जैसे जैसे velocity बढ़ेगी, ये बहुत तेजी से different layer को तोड़ना start करेगा. तो ये ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो और बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये फोर्स बढ़ता ही जाएगा. कौन सा फोर्स? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता जाएगा. तो व्हाट इज विस्कस ड्रैगिंग फोर्स? when any spherical body moves through the fluid, देन ये क्या करेगा बेटा? वेरियस लेयर्स के ऊपर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने की वजह से इसके वेरियस लेयर ऑफ फ्लूइड के बीच में एक रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से इस बॉडी पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इस बॉडी अंदर ग्रेविटी फॉल कर रहे थे, इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो ये रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. बहुत तेजी से ये वेरियस लेयर को तोड़ेगा तो ये वेरियस लेयर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन इस पर फोर्स डालेंगे. इस फोर्स को क्या बोलेंगे? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स. बैंड फोर्स के अलावा लगने वाला ये फोर्स है. तो व्हेन एनी बॉडी स्फेरिकल मूव्स थ्रू द फ्लूइड, देन various layers of the fluid attains relative motion. And due to this
an upward force act on the spherical wheel, act on the spherical body, which is known as viscous dragging force. तो ये क्या करेगा बेटा, अपने साथ जैसे ही जाएगा फ्लूइड को खींचता हुआ चला जाएगा, वेरियस लेयर टूटते चले जाएंगे, तो उनके बीच में ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी। तो ये फोर्स ऊपर लगने वाला समय के साथ क्या होगा, और बढ़ेगा और जैसे देखिए जैसे जैसे अंदर जा रहा है ये क्या हो रहा है, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस फोर्स नहीं, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स फर्स्ट किस पर डिपेंड करेगा, force is directly FD viscous dragging force directly proportional to velocity of this spherical body, because as the body will fall under gravity its velocity goes on increasing। बट एक बॉल को छोड़िए, वो बहुत तेजी में नीचे की ओर जाएगा, लेकिन फ्लूइड के थ्रू जाएगा तो बैंड फोर्स लगने की वजह से थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी क्योंकि वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है। तो magnitude of viscous dragging force is directly proportional to velocity of the body. Since the body is falling under gravity, the magnitude of viscous dragging force goes on increasing. Second, the magnitude of viscous dragging force is directly proportional to coefficient of viscosity of the body fluid. Coefficient of viscosity of fluid। बट फ्लूइड जितना ज्यादा चिपचिपा रहेगा उतना ही ज्यादा उसके लेयर्स क्या होंगे, उस स्फेरिकल बॉल से चिपकेंगे, तो उसे जल्दी नीचे नहीं आने देंगे। तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा ही लगेगा। जैसे पानी में जितना तेजी से स्फेरिकल बॉल मूव करेगा उसे काफी स्लो ग्लिसरीन इज आल्सो फ्लूइड, बट व्हाट यू नो द ग्लिसरीन, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन वो क्या होगा बेटा, चिपचिपा, तो वो ज्यादा जल्दी टूटेगा नहीं, उसके वेरियस लेयर टूटेंगे नहीं, काफी चिपचिपे होते हैं, तो उसे धीरे धीरे जाने देंगे, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो viscous dragging force also depend upon the coefficient of viscosity, and this is known as eta. This is the second portion, eta. Second, and this is the first. Velocity of the body. What is the velocity of the body? Is v. Velocity of the body is v. Velocity of the body is v. Now, what is the next part? The magnitude of viscous dragging force is also directly proportional to radius of the spherical ball. What is the third portion? The magnitude of viscous dragging force is directly proportional to radius of spherical ball. Radius of spherical ball that is falling through the fluid, this is R. So combining, this is equation 1, 2, this is 2, and this is equation 3rd. Combining 1, 2, and 3. Combining equation 1, 2, and 3. What you are getting? Viscous dragging force is directly proportional to first velocity by and R. By putting proportionality signs here, when we are proportionality sign, you remove this, and this is 6 pi. This is the constant of proportionality, 6 pi. This is experimentally derived quantity. This is proportionality constant. Now put this all. 6 pi eta R V. 6 pi eta R V is the magnitude of viscous dragging force. Magnitude of viscous dragging force is 6 pi eta R V. Eta means coefficient of viscosity as the radius of a spherical ball, and with the velocity with which ball is moving through the fluid. This is the velocity with which the ball is moving through the fluid. बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, our next topic is टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा एक लॉन्ग कंटेनर ले लीजिए और उसमें फ्लूइड को भर डालिए, फ्लूइड भरा हुआ है,
अब देखेंगे क्या बेटा, जैसे जैसे फ्लूइड नीचे की ओर एक इसके अंदर स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करेंगे, अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा, तो ऊपर लगने वाला विस्कस ड्रैगिंग फोर्स क्योंकि वेलोसिटी लग रहा है बेटा, दो चीजें होगी, ये रो होगा इसकी खुद की डेंसिटी, रो डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो बेटा इसका मास क्या हो जाएगा, बॉल का मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा इसका रेडियस है आर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम क्या होते हैं बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम आर रेडियस, बेटा स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होगा, और मास इनटू जी वेट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉल, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये हो जाएगा स्फेरिकल बॉल, वेट ऑफ स्फेरिकल बॉल ये होगा, ये मास and this is G. G is 9.8. What is mass? Volume into density. Rho is the density of this. And let sigma is the density of fluid. But before this, in the previous cases, we have already kept on taking rho as the density of the fluid. But here in this case, we are taking sigma as the density of fluid. Beta sigma density of fluid लेंगे. अब देखिए बेटा जैसे बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हैं ये गिरना स्टार्ट करेगा, तो इस पर दो फोर्स लगने स्टार्ट होंगे, एक तो जैसे ही फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा ऊपर की ओर बाइंड फोर्स लगेंगे, बायोंसी बाइंड फोर्स, जो कि मैंने बोला बाइंड फोर्स लगना स्टार्ट होंगे जो कि फिक्स है, बाइंड फोर्स, इसको क्या बोलेंगे बाइंड फोर्स, BUOYANT, बाइंड फोर्स फिक्स है, और बाइंड फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, जितने की इसमें देखो बेटा बायोंसी क्या होती है, मैंने बताया अभी जस्ट, एक बॉल को अगर किसी फ्लूइड के अंदर डालिए तो वो क्या करेगा, फ्लूइड को हटाएगा, इसको फ्लूइड के अंदर डालेंगे, फ्लूइड को अपनी जगह से हटाएगा, और जैसे फ्लूइड को हटाएगा फ्लूइड फिर से चाहेगा कि भाई तुम तो हटो, पहले मेरा जगह था यहाँ, तो फ्लूइड नीचे से ऊपर की ओर फोर्स डालना स्टार्ट करता है, इस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं, जो इसे उठाना चाहता है, फ्लूइड से निकालना चाहता है। अब ये फोर्स कितना लगाएगा फ्लूइड, जितना कि इसने वेट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, वेट कितना डिस्प्लेस किया, अपने वॉल्यूम के बराबर, इसका वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, 4 वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का मास क्या था सिग्मा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास सिग्मा, और वेट क्या था, मास इनटू जी वेट होता है बेटा, मास इनटू जी क्या होता है वेट, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, बेटा फिर से देखिए जितना बड़ा सॉलिड स्फीयर है उतना ही बड़ा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा जब ये फ्लूइड के अंदर जाएगा, इसकी वॉल्यूम क्या, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम किसे डिस्प्लेस कर, फ्लूइड को, फ्लूइड की डेंसिटी क्या बेटा सिग्मा, तो मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सिग्मा, और मास इनटू जी क्या होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो बाइंड फोर्स ये लगना है, ये फिक्स है, और वेट फोर्स किधर लगना है नीचे, वेट फोर्स किधर लगना है नीचे, ये क्या वेट फोर्स नीचे लगना है, ये नीचे लगना है। अब होता क्या है, जैसे पानी के अंदर डालते हैं, फ्लूइड के अंदर जाते हैं, ग्लिसरीन के अंदर डालेंगे, वेट फोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, जैसे मानिए ब्रास का है जो पानी में नीचे आए, ग्लिसरीन में नीचे आए, तो हम मेटल का कोई बॉल लेते हैं ताकि वो आए। अब इसका इफेक्ट क्या देखें, जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ऊपर से छोड़ते हैं तो बेटा कम होती है, और जैसे जैसे समय के साथ, चूंकि बिकॉज दिस बॉडी इज कॉन्स्टेंटली अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो ये विस्कस ड्रैगिंग फोर्स समय के साथ बढ़ता जाएगा, फ्लूइड में जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये बढ़ता जाएगा, बाइंड फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, और वेट फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है। एक ऐसा कंडीशन आएगा, ये बॉल गिरते 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 जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रही, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, ये फोर्स बढ़ता जा रहा है, बाइंड फोर्स तो फिक्स है, वेट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के वेट के बराबर फोर्स लगता है,
बेटा एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इस बॉल का जो वेट फोर्स होगा नीचे की ओर लग रहा है वो ऊपर की ओर लगने वाले बाइंड फोर्स और विस्कस ड्रैगिंग फोर्स के सम के भी इक्वल हो जाता है। अब बेटा देखिए जब विस्कस ड्रैगिंग फोर्स और बाइंड फोर्स का सम नीचे वाले इस स्फेरिकल बॉल पर लगने वाले नीचे वेट फोर्स के बराबर होगा तब क्या होगा, नीचे लगने वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर लगने वाला फोर्स, बेटा नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। अब इसके बाद से इस बॉल ने जो वेलोसिटी अटेंड की है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि इसके बाद से उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि नेट फोर्स क्या लग गया, 0। नेट फोर्स क्या लगा, 0। जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर। अब इस कंडीशन के बाद नेट फोर्स 0 लग गया, अब वो इसी वेलोसिटी गिरते जाएगा, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड दैट वेलोसिटी। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है इस पर दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, एक तो बाइंड फोर्स लग रहा है जो कांस्टेंट है, फिर जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है अंडर ग्रेविटी, तो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ते होने की वजह से एक ऐसा केस कंडीशन आता है कि जब ऊपर लगने वाला विस्कस ड्रैगिंग फोर्स और बाइंड फोर्स का सम नीचे लगने वाले वेट के फोर्स के बराबर हो जाता है, that the body falls with constant velocity and that constant velocity is called terminal velocity। तब क्या होगा, ड्यूरिंग टर्मिनल वेलोसिटी, तब क्या होगा, terminal velocity is that constant velocity with which a spherical body falls through the fluid when the sum of the viscous driving force plus buoyant force is equals to weight force of the body। बेटा इसको मैं रब कर रहा हूं, बेटा व्हाट इज द वेट फोर्स, 4/3 pi r cube density of the body rho into the weight force is equals to buoyant force क्या बेटा, weight of the fluid is placed 4/3 pi r cube sigma density of the fluid into the buoyant force plus what is the viscous dragging force 6 pi eta r v, v is the terminal velocity बेटा, बेटा यही हमें निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। बेटा इसे इधर ले जाइए, 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, जब इधर जाएगा माइनस, बेटा दोनों में कॉमन क्या है, ये 4/3 पाई आर क्यूब जी इनटू रो, जब ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा सिग्मा। बेटा आप देखिए इसमें से क्या क्या टर्म कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, स्क्वायर हो जाएगा, छोड़िए मैं यहां कैंसिल नहीं कर रहा हूं, आप खुद कर लेना। अब देखिए इसे छोड़िए, पाई से पाई, एक आर कैंसिल, 6 से 2, 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, 2/9, 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9, 2/9, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा ईटा। This is the formula for terminal velocity. This is the formula for 2r square g, 2r square g rho density, once again see g now